Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine and in the best state of your health. Today we are going to start chapter number 1, stoichiometry. Before starting our lesson today, let's have a look on today's motivational quote. Don't limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve. Students, every failure, obstacle, or hardship is an opportunity in disguise. Eliminate the negative attitude and believe you can do anything. Replace if I can, I hope, maybe with I can, I will, and I must. In this slide, we will discuss about what is stoichiometry and its significance, information about chemical reactions, mole, problem solving using conversion factor, representative particles, Avogadro's number, interconversion using formulas, molecular interpretation, molar volume, mole ratio as conversion factor, sample problem 1.1, 1.2, and finally your home assignment. Introduction. Definition. Stoichiometry is the quantitative relationship between the amount of reactants used and the amount of products formed. It is based upon the law of conservation of mass. The law states that the matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction, means that the mass of the reactants it must equals the mass of the products. The word stoichiometry is derived from a Greek word stoichion meaning element and metry meaning measurement. The study of relative amounts of substances involved in a chemical reaction is called stoichiometry. Significance. स्टोकियोमेट्री बच्चों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो उनकी क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप है उसे कहते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है. It is used to gather information about the amounts of various elements used in a chemical reaction. For example, a rocket manufacturer uses liquid oxygen as a fuel. तो उसको determine करना होगा कि how much fuel is necessary for a particular flight. Used to balance chemical reactions. Used in conversions, that is converting from grams to moles or from grams to milliliters and so on. Knowing stoichiometry can help you find out the composition of molecules in general proportions of how to combine things to get them to react completely. Having the right proportions of thing is important when you don't have a whole lot of reactants to waste. The engineer must know the relative amounts of fuels and oxygen needed for efficient combustion. Firework manufacturer is required to mix the calculated amount of chemicals. A wrong calculated amount could result in explosions. It is important to predict yield of chemical products. Information about chemical reactions. Remember that the coefficients of reactants and products can represent the number of atoms as well as the number of moles that reacted. Moles do not directly tell us the mass of the reactants. However, remember that the number of moles can be converted into grams. Example. For example, hydrogen burns in oxygen to produce water. The balanced chemical equation is written over here. गर्ल्स आपने ये बात जहन में रखनी है कि स्टोकियोमेट्रिक के चैप्टर में आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है. Whenever you are going to start a numerical, तो you must make sure कि जो भी आपके पास इक्वेशन है that is balanced. तो first of all we have written this chemical equation and balanced chemical equation. What this equation is telling us, the coefficients present before the reactants and the products, like 2 moles of hydrogen, 1 and 2, they represent the moles.
2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to give 2 moles of steam. मोल्स के अलावा ये मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट्स विच आर प्रेजेंट over here. 2 molecules of hydrogen reacts with 1 molecule of oxygen to produce 2 molecules of steam. 2 molecules of steam. It is a mistake over here. 4 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen to produce 36 grams of water. आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो देयर आर 4 एटम्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स के 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. और वाटर का 18 होता है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 ग्राम मीन्स 32 प्लस 4 ऑन दिस साइड एंड 36 ग्राम ऑन दिस साइड. The total mass of the reactants and the products, they are the same. यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था जिसको हमने पिछली स्लाइड में कवर किया था. मोल definition: the atomic mass, formula mass and the molecular mass of a substance expressed in grams is called a mole. Examples हैं 1 mole of oxygen is equal to 16 grams, 1 mole of O2 32 grams, 1 mole of water is equal to 18 grams. किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है या फार्मूला मास है या मॉलिकुलर मास है, अगर आप वो ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो मोल बन जाएगा, मोल के बराबर होगा. एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मॉलिकुलर मास की यूनिट्स होते हैं AMU. अगर आप उस वैल्यू को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो वो 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस की मास हो जाएगी. द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 मोल, what is this term formula mass? The formula mass term is used for ionic compounds. The explanation of 1 mole of NaCl is quite different as it is ionic in nature and will be called formula mass, which produces ions on dissolving in water. आयनिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है कि जब आप उनको वाटर में डालते हैं तो दे गेट डिसोसिएटेड. 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड आपने यहाँ पर लिया है एंड अल्टीमेटली दे आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ आइंस, 1 मोल ऑफ सोडियम आइंस एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आइंस. प्रॉब्लम सोल्यूशन यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर. अभी तक बच्चों जब आपने पहले ये मैथ्स को मोल में और मोल को मैथ्स में कन्वर्ट किया था 10th के लेवल पे या 9th के लेवल पे, तो यू वर यूजिंग फार्मूलाज. ठीक है, अब हम आपको फार्मूलाज के बिसाइड्स कन्वर्जन फैक्टर के मेथड से भी प्रॉब्लम सोल्यूशन को डील करना सिखाएंगे. लाइक मोल और मास को इंटर कन्वर्ट करना है. अगर आपने मोल और मास रिलेशनशिप को डील करना है, चाहे आप मोल को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं या मास को मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हाउ विल यू डू? Use the molar mass of an element or a compound to convert between the mass of a substance and the moles of a substance. इन दोनों की इंटर कन्वर्जन अगर आपने करनी है तो यू नीड द मोलर मास. ओके, अच्छा, कन्वर्जन फैक्टर बेसिकली क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर ये होता है कि जो चीज़ एक आपको गिवन है या नोन है उसको आपने उसकी रेशो लेंगे. लाइक आपने मास और मोल का यहाँ पर रिलेशनशिप है, तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वो मोल और मास का ही होगा. डिपेंड करता है मोल ओवर मास आप ले रहे हैं या मास ओवर मोल आप ले रहे हैं. लाइक अगर सपोज करें कि आपने मास इन ग्राम्स फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, तो गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, इट इज़ इक्वल टू डिज़ायर्ड क्वांटिटी. दिस इज़ द डिज़ायर्ड क्वांटिटी मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज़ द गिवन क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स, एंड दिस इज़ द कन्वर्जन फैक्टर. The conversion factor you are using over here is the mass of 1 mole. ऊपर मोलर मास आ जाएगा ग्राम्स में और नीचे 1 मोल आ जाएगा. अब कैसे पता चलेगा कि आपने मास ओवर मोल लेना है, यानी ऊपर मोलर मास लिखना है और नीचे मोल लिखना है, या आपने ऊपर मोल लिखना है और नीचे मास लिखना है? तो ये आप यूनिट कैंसिलेशन करेंगे. लाइक मोल्स और मोल्स ये कट डाउन हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट ग्राम्स आ जाएगा.
तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द मास इन ग्राम्स फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवर 1 मोल, यहाँ पर आप यूनिट्स की कैंसिलेशन करेंगे और फाइनली यू विल गेट द आंसर इन ग्राम्स। सिमिलरली अगर आपने मास इन ग्राम आपको गिवन है और आपने मोल्स को फाइंड आउट करना है, तो आपने कन्वर्जन फैक्टर रिवर्स पुट करना है फर्स्ट सिनेरियो से। 1 मोल आप ऊपर लिखेंगे और मोलर मास की वैल्यू ग्राम्स में आप नीचे लिखेंगे, और वही बात आपने यूनिट्स की कैंसिलेशन करके फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी इन मोल्स। इसी चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो मैं यहाँ पर आपको इस न्यूमेरिकल में बताऊंगी। व्हाट इज़ द मास ऑफ 3.987 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये हमने कन्वर्जन मेथड से करना है। मुझे पता है कि आपने मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और मास इन ग्राम का, के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, बट वी आर यूजिंग हियर द कन्वर्जन फैक्टर मेथडोलॉजी। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन अ कन्वर्जन प्रॉब्लम इज टू राइट डाउन व्हाट यू नो, यानी व्हाट इज गिवन इज 3.987 moles. And what do you want? What is the desired quantity? It is the mass of aluminium you want to find out. So there are two types of conversion factors which are possible over here. आपने इसमें ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि मोल और मास को आप आपस में आपने इंटर कन्वर्ट करना है, मोल और मास को आपने आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, तो यू नीड अ मोलर मास, तो आप मोलर मास को यूज़ करेंगे, और मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 26.9 gram, it is the atomic mass of the molar mass of the aluminium. 26.98 ग्राम aluminium over 1 मोल ऑफ aluminium, एक ये कन्वर्जन फैक्टर है, और इसी को रिवर्स करके आप लिखें तो एक ये पॉसिबिलिटी है। अब इट डिपेंड्स कि आपने किसको किस में कन्वर्ट करना है। गिवन क्वांटिटी जो है आपके पास उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन फैक्टर से टू गेट द डिजायर्ड क्वांटिटी। तो गिवन क्वांटिटी क्या थी, 3.987 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर आपने इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप यूज़ करेंगे। मैंने आपको कहा था आपने मोल्स की मतलब कैंसिलेशन करनी है, यूनिट्स की कैंसिलेशन करनी है, और आपको पता है कि आपने मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है। तो व्हाट यू विल यूज़ दिस कन्वर्जन फैक्टर। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल गेट कैंसल डाउन, and finally you will multiply these two values to get mass of aluminium in grams. A counting unit similar to a dozen, मोल की बात हो रही है यहाँ पे कि जैसे आपको पता है कि 1 डजन के अंदर 12 आइटम्स होते हैं, तो इसी तरीके से ये भी मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। 1 मोल का मतलब है 602 बिलियन ट्रिलियन एटम्स। ये देखें, इट इज़ अ ह्यूज नंबर, 602 एंड सो मैनी ज़ीरोज़। साइंटिफिक फॉर्म में इसको लिखें तो इट इज़ 6.02 इंटू 10 की रेज टू द पावर 23 ऑफ एनीथिंग। 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 of anything. Anything means if you are taking atoms, so it will be atoms. If you are taking molecules, then it will be molecules. If you are taking ions, it will be ions, and so on. The term mole is used to find out the number of atoms and molecules. The term formula mass is used for ionic compound. For example, the formula mass of NaCl is 58.5 gram. This concept allows the chemist to count by weight. Keep this thing in your mind कि 1 मोल के अंदर मोलर मास जितने जो ग्राम्स हैं वो आते हैं उस सब्सटेंस के, और दूसरा 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। Abbreviation of the mole is MOL. It is the amount of the substance equal to 6.02 raised to the power 23 particles. These particles can be atoms, ions, formula units, molecules, electrons. 1 mole of carbon atoms होंगे तो of course 6.02 into 10 raised to the power 23 carbon atoms होंगे, like you know Avogadro's number of anything. तो अगर आप कार्बन एटम्स ले रहे हैं तो आपके पास इतने कार्बन एटम्स होंगे। अगर आप 1 मोल वाटर ले रहे हैं तो वाटर जो है वो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अवोगाड्रोस नंबर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो अवोगाड्रोस नंबर जितने सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स होंगे।
आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो स्मॉलेस्ट वो उसका होता है पार्टिकल, वो फार्मूला यूनिट होता है, मॉलिक्यूल नहीं कहते इसको, आप फार्मूला यूनिट कहेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर जितने हाइड्रोजन आइंस होंगे। तो इन जनरल वी कैन से that 1 mole of a substance it is equal to 6.02 raised to the power 10 raised to the power 23 particles, and particles include atoms, ions, molecules and everything. This is an important reason of your exercise. 58.5 gram is the formula mass of NaCl and not the molecular mass of NaCl. Why? The term molecular mass is used for molecular compounds. NaCl is an ionic compound. Atoms do not aggregate into molecules. For example, in sodium chloride, the atoms are not organized into discrete molecules but are bonded with one another in a network structure. Sodium chloride has no molecules in the crystal structure. The formula is NaCl because for one sodium ion there is one chloride ion in the crystal. Hence 58.5 gram is its formula mass. It produces ions on dissolving in water. आपने पहले सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें आपने देखा है कि वो एक आयनिक कंपाउंड है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आयंस जो हैं वो आपस में नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर बाउंड हुए हुए हैं। तो दैट्स वाई द टर्म मॉलिकुलर मास इज नॉट यूज्ड फॉर NaCl बट इंस्टेड फॉर्मूला मास इज यूज्ड। मोलर मास के बारे में आपको पहले से पता है, तो जस्ट रिव्यू इट। A substance molar mass is the mass in gram of 1 mole of that compound. For example, if there is carbon dioxide, तो अगर आप इसका अटोमिक मॉलिकुलर मास लेंगे और उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी द मोलर मास। यूनिट्स जो हैं वो इसके ग्राम्स पर मोल होते हैं बिकॉज इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। वाटर 18.02 ग्राम्स पर मोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74.10 ग्राम्स पर मोल। तो mass of 1 mole of a compound is known as molar mass. Representative particles, Avogadro's number. Definition: the number of atoms, ions and molecules present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. Note: 1 mole of any gas at STP occupies 22.414 dm cube and contains 6.02 raised to the power 23 particles. This is an equation, and this equation is telling us that 2 moles of hydrogen are reacting with 1 mole of oxygen. और मैंने आपको भी बताया है कि मोल का मतलब है 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर। तो इफ़ देयर आर 2 मोल्स तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे। इफ़ देयर आर 1 मोल तो एवोगैड्रोस नंबर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से, एंड इफ़ देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो दैट मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप जहन में रखें कि मैंने अभी STP आपसे डिस्कस करना है कि वो क्या होता है। किसी भी गैस, कोई भी गैस आप ले लें, एनी गैस, और अगर आपने उसका 1 मोल लिया हुआ है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस रखी हुई हैं, तो जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और ऑफ कोर्स 1 मोल है तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें होंगे। एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ मोनो अटोमिक एलिमेंट। अगर आपके पास जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, मोनो अटोमिक कोई भी एलिमेंट है तो उसके 1 मोल का मतलब है कि उसमें 6.02 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स होंगे। अगर आपके पास 1 मोल किसी भी कंपाउंड का है या डायटोमिक मॉलिक्यूल का है तो ऑफ कोर्स 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास किसी भी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल है तो फिर ना 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ना एटम्स होंगे ना मॉलिक्यूल्स होंगे, बल्कि फार्मूला यूनिट्स होंगे, जो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि आयनिक कंपाउंड के लिए जो सबसे बेसिक उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज़ द फार्मूला यूनिट। 1 मोल ऑफ 6.02 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.02 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर आपके पास है, क्योंकि ये मॉलिकुलर फॉर्म में है तो एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास 1 मोल NaCl है तो NaCl के लिए हम टर्म, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। अब एवोगैड्रोस नंबर को जब हम कन्वर्जन फैक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे तो हाउ विल वी यूज़?
वी नो दैट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर पार्टिकल्स। तो इसके 2 कन्वर्जन फैक्टर्स पॉसिबल हैं। आप एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर लिखकर 1 मोल नीचे लिखें, या 1 मोल ऊपर लिखकर एवोगैड्रोज नंबर पार्टिकल्स नीचे लिखें। अब इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कन्वर्जन कि आपको कौन सा वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना है। नोट दैट अ पार्टिकल कुड बी एन एटम और अ मॉलिक्यूल। इंटर कन्वर्जन यूजिंग फार्मूलाज। अब ये वो चीज़ है जो मैंने एक फ्लो शीट डायग्राम में कवर की है, जो ऑलरेडी आपने 9th के लेवल पे ये सारे फार्मूलाज पढ़े हुए। लाइक मोल्स हैं अगर आपके पास, और उसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये यहाँ से आप चलें। ग्राम्स को अगर आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड विद द मोलर मैस, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो यू गेट मोल्स, ठीक है। अगर आपने मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स विद द एटॉमिक मैस और मोलर मैस, देन यू विल गेट द मैस इन ग्राम। In the same way, if you are going to convert the number of atoms or molecules into moles, अगर आपको number of atoms मैं दे दूँ और आपसे कहूँ कि number of moles में convert करें तो divide with the Avogadro's number, and if you are given with the number of moles and you want to convert it into number of atoms or molecules, you have to multiply with the Avogadro's number. These are the formulas which we have already done. Okay, this is the molecular interpretation. 1 molecule of C2H6O has, मतलब क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अगर आपके पास ये 1 molecule, मैं आपसे कहती हूँ कि 1 molecule of C2H6O has 2 carbon atoms, 6 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. और अगर मैं इसी को 1 molecule को 1 mole कर देती हूँ तो आपके पास यही जो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे सबस्क्रिप्ट्स, ये आपके मोल्स बन जाएंगे। 1 mole of C2H6O has 2 moles of carbon atoms because it is written 2 over here, 6 moles of hydrogen atoms and 1 mole of oxygen atoms. अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर रिलेशनशिप या कह सकें कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट लिखना चाहूँ तो 1 mole of C2H6O has 2 moles of carbon atoms, तो इसके 2 कन्वर्जन फैक्टर बनते हैं। एक में आप मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स ऊपर लिखें और 1 mole of C2H6O नीचे लिखें, या फिर आप इसको रिवर्स करके लिखें, डिपेंड करता है कि आपने किस को किस में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास 1 mole of C2H6O है तो 6 moles of हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये आपके पास ये 2 कन्वर्जन फैक्टर्स पॉसिबल हैं। 1 mole of C2H6O has 1 mole of ऑक्सीजन एटम्स, तो इसकी आपके पास 1:1 ये रेशो आएगी। Keep this thing in your mind कि in conversion factors you have to write the complete units of each and everything. आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि complete units यहाँ पर mentioned है, not only mole but mole of whatever it is. Molar volume. Molar volume, what is molar volume? The molar volume of a gas is measured at STP. It is the volume occupied by 1 mole of a gas. और अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं, ये कंडीशन मस्ट है, तो आपके पास किसी भी गैस का, चाहे आप कोई सी भी गैस ले लेते हैं, वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और वो वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 लीटर। For example, in this diagram you can see that 1 mole of helium, 1 mole of oxygen and 1 mole of nitrogen. All of these, they are having different masses. 1 mole of helium is having 4 gram of helium. This one is having 32 gram of oxygen. This one is having 28 gram of nitrogen. But the volume occupied by all of these gases is the same. Why? What is the value? 22.4. Why? Because these all 3 gases have 1 mole and STP, and they are at STP. अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो जहन में आपने रखने हैं कि अगर आपके पास आपको मैस दे दिया जाए तो आपने अगर उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो यू आर फेमिलियर मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। इन द सेम वे अगर आपको मैं कोई वॉल्यूम दे देती हूँ, जैसे 50 cm³ या 25 cm³ और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताएं इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, तो आपने
गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करने। बट ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो अगर आप मोलर वॉल्यूम की जो यूनिट्स पुट कर रहे हैं आपने ऊपर वाले वॉल्यूम के भी वो यूनिट सेम होंगे तो तभी वो कैंसिलेशन पॉसिबल है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, यानी इसी चीज़ की रीअरेंजमेंट की हुई है। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोल्स, सेम फार्मूला की 3 डिफरेंट फॉर्म्स आपको बताई गई। अब ये जहन में रखें कि जो लीटर और डीएम क्यूब है दे आर द सेम थिंग, यानी 22.4 लीटर कहें हम या 22.4 डेसीमीटर क्यूब कहें, इट मीन्स द सेम थिंग। अब कन्वर्जन फैक्टर बताना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि देयर आर मेनी टाइम्स वॉल्यूम गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। अगर आपके पास सीएम क्यूब में वैल्यू गिवन है और आप उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट यू हैव टू divide by 1000. If 1 mole sample of any gas is at STP, then the volume which this sample is occupying is 22.414 liter. और जैसे मैंने आपको पहले बताया एंड लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब्स मीन्स द सेम थिंग, द 22.414 डीएम क्यूब. This means that at STP 1 mole is equal to 22.414 liter. This is the problem. You have to solve it in your home task for practice. A 12.37 liter sample of a gas is at STP. How many moles are in this sample? You know, I have told you the formula in the previous slide. By using this formula, you can easily find out the number of moles by dividing it with the molar volume. Now, what is standard temperature and pressure, STP? For research and convenience, a standard temperature and pressure are used when working with gases. Standard temperature 273 Kelvin और 0 Celsius. Standard pressure sea level पर 1 atm होता है जो कि 760 मिलीमीटर मरकरी के भी बराबर है, 760 टॉर के बराबर है, 101.3 किलो पास्कल एंड 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के बराबर है. ठीक है. सो इफ़ द gas is at 273 Kelvin or 0 Celsius, it is the same thing. And if the pressure is 1 atmospheric pressure, then it means that the gas is at STP. Interconversion by formulas. Okay. In this mole bridge, we have volume also. If you want to convert volume into moles, you need to divide it by 22.4 liter. If you want to convert moles into volume, given volume, then you have to multiply with the molar volume value. If you want to convert number of molecules into moles, you have to divide it by Avogadro's number. And if you want to convert number of moles into number of molecules, you have to multiply with the Avogadro's number. If you want to convert the mass in gram into the moles, you have to divide by gram formula mass. And if you want to convert mole into mass, then in that case you have to multiply with the gram formula mass. So this is a very interesting mole bridge which is completing at least 6 different types of conversions. What is the mass of 1.5 mole of aluminium atom? Means you have to convert it in from mass to mole. तो आपने दोनों मेथडोलॉजीज यूज़ करनी है, फार्मूला से भी और आप कन्वर्जन फैक्टर को भी यूज़ करेंगे. आंसर आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको बता दिया गया है. हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ आइस? तो ये भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपने ग्राम्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करें और मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई विद द Avogadro's number. Mole ratio as conversion factors. Amount of given substance multiplied by mole ratio is equal to amount of unknown substance. Means ये desired quantity है जो आपने find out करनी है. Given quantity को आप mole ratio से multiply करेंगे तो आपके पास desired quantity आ जाएगी जो आपने find out करना. A mole ratio is a conversion factor that relates the amount in moles of any two substances in a chemical reaction.
किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बट वही बात है कि आपको इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। स्टोकियोमेट्री के अंदर इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। किसी भी दो सब्सटेंसेस के दरमियान जिनके दरमियान आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो है उसको आप मोल रेशो कहेंगे। Mole ratio means the ratios of the number of moles of the reactant taking part and the number of moles of the product formed. The numbers in a conversion factor, they come from the coefficients of the balanced chemical equation. That's why I was saying that the equation must be balanced, because these coefficients, they will be used in the conversion factor. The coefficient represents the number of moles. Example, combustion of methane. The equation is written over here. Mole ratios. The mole ratios between the reactants and the products are 1 mole of propane reacts with 5 moles of oxygen to give 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. Note, the amount of propane used will not affect these ratios. What is conversion factor? Definition. A ratio of the conversion factor of the coefficients found in a balanced chemical equation, which can be used to interconvert the amount of any two participants, reactants or products, is called conversion factor. Stoichiometric conversions तीन तरह की हैं, mole to mole, mole to mass and mass to mass. Let us discuss them one by one. स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस मोल टू मोल कन्वर्जन्स, कि अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसमें किसी एक के मोल दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इससे किसी दूसरे सब्सटेंस के मोल्स फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब है कि यू आर डीलिंग विद द मोल टू मोल कन्वर्जन। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है अपना काम बाय राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आफ्टर राइटिंग योर बैलेंस्ड इक्वेशन, you then need to identify the substance you are given or you know and the one you need to determine. यानी आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर लेनी है कि मुझे क्या चीज़ गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर और क्या चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। यानी गिवन क्वांटिटी क्या है एंड डिज़ायर्ड क्वांटिटी क्या है। यूज़ मोल रेशियोज, फिर आपने मोल रेशियोज यूज़ करने टू डिटरमिन द सब्सटेंस दैट यू नीड टू फाइंड। अब ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है 1.1। इस सैम्पल प्रॉब्लम में मोल से मोल ही फाइंड आउट आपने करने हैं, तो इसमें आपको एक अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। द इक्वेशन इज रिटन ओवर हियर एंड it is balanced. If 3.50 moles of methanol are burnt in oxygen, calculate how many moles of oxygen are used, how many moles of water are produced. So there are two parts of this numerical. एक में आपने moles of oxygen find out करने हैं और एक में आपने moles of water find out करने हैं। अब चूंकि इसमें एक सब्सटेंस गिवन क्वांटिटी के मोल्स गिवन है और डिजायर्ड क्वांटिटी के भी आपने मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं, तो दिस इज मोल टू मोल रिलेशनशिप जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसका सोल्यूशन कैसे? पार्ट ए, मोल्स ऑफ मेथनॉल विच इज द गिवन क्वांटिटी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। मोल्स ऑफ मेथनॉल, इट इज गिवन क्वांटिटी 3.50 मोल्स। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने फाइंड आउट करनी है, इट इज द डिजायर्ड क्वांटिटी। कन्वर्जन फैक्टर मोल रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है, तो ऑफ कोर्स मेथनॉल और ऑक्सीजन के मोल्स की ही मोल रेशियो होगी। जिन दो के दरमियान रिलेशनशिप होता है आपने उन्हीं की मोल रेशियोज या मोल की वैल्यूज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पिक करनी होती है। अब मोल रेशियो यहाँ पर है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस, के ऊपर आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही लिखनी। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल ऊपर लिखते और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीचे लिखते। तो ये बात आप जहन में रखें कि हमेशा जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है उसको आप मोल रेशो में या कन्वर्जन फैक्टर में ऊपर रख दें। हमने चूंकि हमें पता है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को ऊपर रखेंगे और मोल्स ऑफ मेथनॉल को नीचे रखेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। अब डिजायर्ड क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख देना चाहिए था। गिवन क्वांटिटी हमें क्या है? 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल, मल्टीप्लाई बाय जो कन्वर्जन फैक्टर हमने यूज़ करना है उसमें हमने
टॉप पे क्या लेना है, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, और वो क्या फाइंड आउट करनी है, हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने। तो आप ये देखें कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट यूनिट्स लिखे हैं, यानी मोल्स ऑफ मेथनॉल भी लिखा है, और फिर आप इनको कैंसिल करेंगे और फाइनली जो चीज़ पीछे रहेगी दैट इज़ द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली जो इसका पार्ट बी है जिसमें आपने क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है, डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इसमें भी आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। जो कन्वर्जन फैक्टर आप यूज़ करेंगे वो ऑफ कोर्स मेथनॉल और वाटर वाला होगा, यानी या 4 मोल्स ऑफ वाटर ओवर 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल, या फिर वाइस वर्सा। और वही वाली बात मैंने आपको बताई कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो कन्वर्जन फैक्टर में मोल्स ऑफ वाटर आप टॉप पे रखेंगे और दूसरी जो चीज़ है वो आप नीचे रखेंगे। यूनिट्स की कैंसिलेशन करने के बाद यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज़ द 7 मोल्स ऑफ वाटर। गर्ल्स, आप ये फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करना है, और फिर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या जो क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में दिए हुए हैं उनको फोकस करना। अभी हमने थोड़ी देर पहले मोल टू मोल कन्वर्जन्स को डील किया था। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस मोल टू मास कन्वर्जन्स। Now suppose you know the number of moles of a reactant or product and you want to calculate the mass of another product or reactant, तो आपने क्या करना है, मोल टू मोल वाला सारा काम करने के बाद एंड पे जो आपके पास मोल्स आएंगे और सब्सटेंस के, उसको आप मास इन ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोलर मास। Stoichiometric calculations, mass to mass convergence. Using the mole ratios and mole mass calculations, you can determine the needed masses to react and the masses that will be produced. फर्स्ट आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, देन यू हैव टू, अब ये मैस टू मैस है लेकिन आपने इसको मोल टू मोल में सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपके जो फर्स्ट और लास्ट स्टेप है उसमें दो चीज़ें एडिशनल होंगी। पहले आपने इस मैस को मोल्स में कन्वर्ट करना है जो आपके पास गिवन मैस होगा, फिर आपने मोल से मोल निकालने हैं, और फिर आपने जो मोल्स निकले हुए होंगे उनको लास्ट स्टेप में दोबारा मैस इन ग्राम में कन्वर्ट करना। दिस इज द सेम थिंग which they have written over here. Then convert the mass of the reactants to moles. Use the mole ratios to determine the moles of the unknown to you are looking for. Then use molar mass to convert moles of the unknown to the mass of the unknown. अब यहाँ पर मैं आपको इस सैम्पल प्रॉब्लम 1.2 में मैं आपको मैस वाला रिलेशनशिप करना सिखाऊंगी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि दो स्टेप्स एडिशनल हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। पहले आपने मैस को मोल्स में करके फिर मोल टू मोल फाइंड आउट करने हैं, और फाइनल स्टेप में आपने दोबारा जो मोल्स हैं उनको मैस में कन्वर्ट करना है, और ये सारा हम कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने फॉर्मूला यूज़ कर ली है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। ये इक्वेशन आप यहाँ से लिख लेंगे कि आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर Fe2O3 बाय रिएक्टिंग द ओर विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि आपने Fe2O3 का रिएक्शन किसके साथ लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लिखना है, और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट। व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर। अब आपने सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, मैस इन ग्राम गिवन है, तो यहाँ पर उन्होंने आपका नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला यूज़ करके आपने इसके अंदर 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3 कैलकुलेट कर ली। अब आपने इन मोल्स से निकालना क्या है, आयरन कितना बन रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आयरन का फाइंड आउट करने के लिए आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिज़ायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। डिज़ायर्ड क्वांटिटी हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। वैसे तो हमने मैस ऑफ आयरन निकालना है, लेकिन मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि हम बीच में मोल टू मोल कन्वर्जन करेंगे, और फाइनली हम मोल्स जो आएंगे उनको हम मैस इन ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग मोलर मैस। तो ये जो आपके पास मैस इन ग्राम आया हुआ है आयरन ओर का, इसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मैस ऑफ आयरन से, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। ये देखें, इसके बाद आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, डिज़ायर्ड क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, गिवन क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर आपने वो चीज़ रखनी है जो आपने डिज़ायर्ड है, जो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोल्स ऑफ आयरन आपने फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन आप ऊपर लिखेंगे,
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 आप नीचे लिखेंगे। और ये क्या इनकी वैल्यूज़ लगानी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम देखकर। आपके पास यहाँ पर 2 है तो आप ऊपर 2 मोल्स ऑफ आयरन लिखेंगे, नीचे Fe2O3 के मोल्स 1 है तो आप नीचे 1 लिखेंगे। यूनिट्स की कैंसिलेशन आपने न्यूमेरिकल में शो करनी है, इट इज़ कंपल्सरी। और फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यूनिट्स ऑटोमेटिकली मोल्स ऑफ आयरन के आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो मोल्स ऑफ आयरन की यूनिट्स आए हैं, इसको आपने दोबारा से मैस इन ग्राम में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आर डिमांडिंग द मैस इन ग्राम। तो आप दोबारा कन्वर्जन फैक्टर लगा के इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। डिजायर्ड क्वांटिटी है मैस ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड, गिवन क्वांटिटी जो है वो आपके पास जो मोल्स ऑफ आयरन आए हैं वो हैं। कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा मोल और मैस का, वो आपने मोल और मैस वाला यूज़ करना है। तो आप ऊपर लिखेंगे 55.9 ग्राम, नीचे लिखेंगे 1 मोल ऑफ आयरन और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 297.388 ग्राम्स। ओके, नाउ योर होम असाइनमेंट। There are 3 short questions and 2 or 3 numericals which are given with the selective topics. 58.5 gram is the formula mass of NaCl, not the molecular mass of NaCl. Why? How many covalent bonds are present in 12 gram of ice? Self check 1.1, which is on page number 9, and other numericals which I have already told you. Avogadro's number में शायद एक न्यूमेरिकल बताया था, वो भी आपका होम टास्क है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ।